अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, खुशामदीद। क्रिकेट क्लिनिक के साथ आज हमारे पास आसिफ अहमद, मुदस्सिर मिर्जा, साइम कश्मीरी एंड वी हैव अ गेस्ट अपीयरेंस फ्रॉम आवर डियर फ्रेंड शुएब आजम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का एपिसोड हम पीएसएल के बारे में कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे आप जो फैंस हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। वी वुड लाइक टू लुक एट प्रीव्यू और sort of look at the games that have happened अभी as we record this episode। आपकी जो प्लेऑफ्स और एलिमिनेटर्स और वो स्टेज होने वाली है। चार टीमें हमें मिल गई हैं। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि ये सीजन कैसा गया है, क्या लर्निंग्स आई हैं, एंड हैव वी आइडेंटिफाइड सम गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, और किन प्लेयर्स ने हमें डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले एक ओवरऑल बिग पिक्चर क्वेश्चन मैं पैनलिस्ट को पूछना चाहूंगा अबाउट द मीनिंग ऑफ पीएसएल। पीएसएल कितना मानी रखता है हमारी ओवरऑल क्रिकेट टीम के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट or how much importance should be given to PSL when we are making decisions about our selection, decisions about our overall national team strategy. Um, Asif, why don't you start? आप बताएं आपके क्या thoughts हैं, and then all of us can kind of Okay. weigh in on that. So thank you. Assalamu alaikum, everybody. It's been a long time. The last time we met, Pakistan was vying for a place in the semifinals in the World Cup. I think the fact that we haven't had an episode since then tells you how that went because we never have an episode when we lose. Um, but yeah, look, PSL for me, it is it's nice to see, but it is strictly and purely entertainment, I think, because history has dictated and has shown us, with very few exceptions, that results and form in PSL does not necessarily translate to the international level. We have seen some people not do very well in PSL and then, go and have, quite a bit of success at the international level. Conversely, we've also seen players in the past who have been actual players of the series in PSL and then have flopped internationally. So on one hand, you can say maybe it's not that important, but at the other perspective of that is that aside from international cricket, this is the biggest showcase of our players that we have. So I don't think it's right to say you ignore it completely. I mean, I watch it more for entertainment, but we also watch it because this is the biggest stage that many of the aspiring cricketers have, and the whole nation is watching. And there are especially recently we've seen our under 19 team, our A team, we've seen some really good players come up from there. So this is a chance to see how they perform in these pressure situations with their contemporaries who are at the international level. For people who are on the fringe of selection, you get to see how, again, would I base selection just on PSL? No, but thankfully there's so many matches. Give more than one innings or one performance indicting someone or saying that they should be selected on that level, on that basis. You get to see a whole trend. You get to see how a player approaches situations. You get to see their mental makeup, how they respond to various situations. And I think it's interesting and it's entertaining. There's no questions entertaining. How much does it mean? At the end of the day, I don't know. I don't know how many real top level Pakistan cricket team players we're going to get from this. But I think again, you can't ignore it. It's going on, and the top players are playing, so you have to watch it. So I used to be completely dismissive of it. I'm not anymore. I just think that I watch it more for entertainment. And Ekal, but especially the young players, I'm looking to those guys because look, let's be honest, our current T20 team, we've most of them have run their course. And so we're looking for young blood. We're looking for people who can, we're looking for that good combination of experienced veterans and youth who can be brought in, infuse a new enthusiasm, a new approach to the Pakistan team. So I do think it's pertinent. So that's where, but that's all I have to give because I have not watched it much. I know that the rest of you guys have been watching much more. So I'll throw in my comments here and there, but that's my overall perspective. वेब, आप क्या कहेंगे? आप आसिफ से एग्री करेंगे क्या? यू लाइक टू ऐड एनीथिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ पीएसएल? दो पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल है इसको देखने के। एक तो फाइनेंशियल है। मेरे ख्याल है पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक सस्टेनेबल है, ऑल्दो इंटरेस्ट ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग जो स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है हमारे टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, ओडीआई में भी। फाइनेंशियली मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को इन जनरल। एक सस्टेनेबल मॉडल पे हैं हम इस वक्त। हमें इतनी ज़्यादा टेंशन अब नहीं रहती कि कौन हमारे साथ खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, कौन नहीं खेल रहा। एक तो ये फ़ायदा बहुत बड़ा है।
इस साल ये भी। हमने, सॉरी मैं कट करूं, जो इंडिया के साथ हमारा एक हुआ था जब हमने कहा था जी चलो हम नहीं खेलते, वो एक पार्ट ऑफ द रीजन ये भी था कि हम एक फाइनेंशियल बैकिंग थी पीएसएल की, एक राइट? बैकिंग थी, हाँ। उसकी एक वजह ये भी है कि इस साल जो 3 टीम्स की बिडिंग हुई है, वो मेरा ख्याल है कि एवरीबडी इन पीसीबी वाज सरप्राइज्ड Yeah. कि इतनी How अच्छी much बिडिंग money? गई है। तीन टीमें जो एक्चुअली तीसरी तो फिर और भी महंगी बिकी। तो हम्म। एक तो ये है, ये एक अलग एंगल है। आई नो कि आप, मेरा ख्याल है ज्यादा आपका जो एंगल है वो ये है कि अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या फायदा हो रहा है उसमें। देखिए, दो इसके ये हैं चीजें देखने की कि एक तो आप कहते हैं कि अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के आने चाहिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में, डिफरेंट उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इशू ये है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी पाकिस्तान में अब देखें कि उसकी क्या हालत है, किस तरह के ग्राउंड्स पे वो खेली जाती है, किस तरह की पिचेस पे वो खेली जाती है, किस तरह के प्लेयर्स हैं उसमें, कितनी कंपेटिटिव है वो क्रिकेट। तो उसमें एक आर्गुमेंट ये आप कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसमें पीएसएल में बाहर से भी प्लेयर आ रहे हैं, थोड़ा एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, थोड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान के सारे जो टॉप 20 प्लेयर्स हैं जो फॉर वन रीजन और दी अदर डोमेस्टिक क्रिकेट में सीजन में होते ही नहीं है, तो एक तो वो भी इन्वॉल्व होती हैं, ऊपर से बाहर से आप 15-20 लड़के और ले आएंगे अगर स्लाइटली जो कि बेटर होंगे, तो ये एक 40-50 लोगों का एक पूल बन जाता है जो कि आपस में क्रिकेट खेलता है। तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बहरहाल बेहतर मिलता है उसमें। अ, पाकिस्तान की अच्छा, इसका एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इसलिए इम्पोर्टेंस से आप इग्नोर नहीं कर सकते इसकी इम्पोर्टेंस को। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो इसमें परफॉर्म किया है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो उसमें प्रॉब्लम है पीएसएल से पाकिस्तानी टीम बनाने में, मैंने मेरा ख्याल है पहले भी ये बात की है कि जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सिलेक्शन कमेटीज होती हैं वो गाइड करती हैं डोमेस्टिक टीम्स को कि अच्छा हम ये इस प्लेयर को देख रहे हैं, इस पर नजर रख रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि मिसबाहुल हक साहब ने भी एक दफा आप लोगों को भी कहा था मेरा ख्याल है मिलके, कि हम कहते हैं, हम मैसेज भेजते हैं कि इस लड़के को खिलाओ, और बाद में Hmm. पता चलता है कि वो लड़का खेल ही नहीं रहा होता। तो ये मेरा ख्याल है आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी होगा, पीपल हु मेट मिसबाहुल हक रिसेंटली आई थिंक, तो जब वो आए हुए थे लोकली। तो फ्रेंचाइज ओनर्स और मैनेजमेंट का हाँ, ज्यादा Hmm. उसमें अमल दखल होता है कि अमल वो दखल डिसाइड होता करते है। हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल, अब एक लड़का, अब शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 2 डाउन आते हैं। अब क्या वो एक, अब अगेन, अब आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर कन्वर्सेशन और अनदर डिबेट हियर, क्या वो पाकिस्तान के लिए नंबर 4 स्लॉट पे compete कर रहे हैं? लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइज में नंबर 4 का स्लॉट लेके बैठे हुए हैं, जो कि कोई और लड़का उस पे एस्टैब्लिश हो सकता है, ग्रूम हो सकता है उसमें। Hmm. हैं। उसके बट अलावा बट भी सॉरी, इस पॉइंट के ऊपर मे बी द फ्रेंचाइज बिलीव दैट्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, राइट? बिकॉज वो तो अपनी जीतने के लिए खेलते हैं, सो एटलीस्ट इन देयर ओपिनियन ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट स्लॉट, for that team, for that he's फॉर दैट probably the टीम। best या candidate in that team, and also is the captain, so probably he would like to take the initiative। और वो अब फिर बात मेरा ख्याल है बहुत टेंजेंट पे चली जाएगी। और तीसरी, अच्छा, एक आखिरी बात मैंने इसी टॉपिक पे कहनी है कि उसमें कभी कभार ये एक क्रिटिसिज्म आता है कि अक्सर रिफ्लेक्ट नहीं होती वही परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो रिफ्लेक्ट अक्सर इसलिए नहीं हो पाती है कि अक्सर लड़के, अच्छा, इसका एक ये मैं अपनी बात को मेरा ख्याल है शायद अपोज भी करने लगा हूं कि अक्सर क्या होता है कि कुछ लड़कों को फ्रेंचाइजीज बहुत ज्यादा बैक करती हैं। वो लड़के उस बैकिंग से परफॉर्म कर जाते हैं, यंगस्टर अक्सर। लेकिन वो जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आते हैं तो वो बेसिकली जो लेफ्ट ओवर स्पेस होती है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो उसमें एडजस्ट उनको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का, एक नया, एक यंग सेंसेशन आया है, बजाय इसके कि आप उसको ऊपर भेजेंगे, वो ऊपर नहीं जाएगा। उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब सारा अपना ड्यू प्रोसेस या अपनी बारी ले चुके होंगे, Hmm. 17वें 18वें ओवर में आके जब उसको बैट स्विंग करना होगा तो उसको भेज दिया Hmm. जाएगा। उसके बजाय जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में वही लड़का खेल रहा होगा तो वो कंटिन्यूअसली 10-12 मैचेस फ्रेंचाइज उसको बैक कर रही होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होगा, वो उसको Hmm. पता होगा कि आज मैं फेल हुआ कोई बात नहीं, आज मेरी 17वें ओवर में बारी आई है, कल हो सकता है 8वें ओवर में भी आएगी मेरी बारी। समवन लाइक उस्मान खान में भी, या तो हाँ, जिसको तो ओपनर खिलाया गया है पास में, जी जी, लेकिन हाँ। अभी वर्ल्ड कप में उसको तो 6 डाउन खिलाया जा रहा था। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें। मुझे मुझे लगता ये है कि मैंने लंबी बात कर दी इसमें, ये कि सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा फ्रेंचाइज क्रिकेट है तो वो होती नहीं है वो रिफ्लेक्ट उसमें, तो छोड़ दो इसको, ऐसा राइट। मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, देन मुदस्सिर आप इस पे करें कि मेरे लिए एक और जो मीनिंग रखता है पीएसएल, वो है एक ग्रूमिंग कह लें आप ऑफ ऑफ कैप्टन्स। एंड आई नो कि जो एक स्ट्रेस लेवल होता है, एक टेंशन बहुत कम होती है पीएसएल में एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल गेम्स, बट दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ नर्सरी, इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ऑडिशन, कि आप एक छोटे लेवल पे अपने एक एक प्रोस्पेक्टिव कैप्टन को ग्रूम करो,
और क्योंकि यहाँ पे भी तो डिसीजंस लेनी होती हैं स्पेशली प्लेऑफ्स में और फाइनल्स में, और फिर उस एक्सपीरियंस को फिर आप कैश इन करो जब आपको रियल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर प्रेशर पड़ता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार आगा सलमान जिस तरह कि उसको कराची किंग्स ने कैप्टन नहीं बनाया, ना सिर्फ कैप्टन नहीं बनाया बल्कि जब डेविड वार्नर चले गए थे या कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो वाइस कैप्टन जो आपका मोइन है, मोइन को उन्होंने कैप्टन बना दिया था। तो उस वक्त भी उसकी एक ट्रेनिंग नहीं हुई। तो मेरे लिए एक ये चीज भी होती है कि यार पीएसएल से हमारे जो एक प्रोस्पेक्टिव जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उनको हम ग्रूम करें, और कल को यही इन्हीं लड़कों ने आके फिर हमारी एक लीडरशिप का क्राइसिस तो हमें नजर भी आ रहा है। So तो my इस question to that, just to counter that, is कि पिछले 2-3 सालों से Shaheen Shah Afridi has been the captain of Lahore Qalandars. Have you seen any maturity or any progress in his captaincy approach at the ODI level or white ball level from this experience? Because personally, I have not. I've seen the same immaturity now that we saw back then. यार Just as an example, you know? इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका इतना अभी आप देख लो, आई डोंट थिंक उसको इतने चांसेस मिले हैं। उसको आपने T20 का कैप्टन बनाया था फॉर वन सीरीज, Mm, और उसी एक mm, सीरीज के बाद उसको आपने हटा दिया। mm, ओडीआई में ही हैज जस्ट बीन मेड द कैप्टन। yeah. बांग्लादेश सीरीज वाज काइंड ऑफ लाइक एन ओके, उसमें कुछ ब्लंडर्स भी थे, कुछ अच्छी Mm-hmm. डिसीजंस भी थी। सो आई थिंक द ज्यूरी इज स्टिल आउट। Lahore Qalandar is still quite happy with him despite the fact that he has made some debatable decisions, for example promoting himself up the I mean, order. as a fan, you see them firsthand. So I'm asking not to criticize, just saying, do you think in the few years that his captaincy has matured or progressed? वैसे मैं पूछ रहा हूँ, I don't know, you know. It has evolved slightly. I think Mm-hmm. it's evolved slightly. He's obviously issue तो है एक थोड़ा सा, एक आप attitude की बात कर लो या thinking of himself as a batter which he is not. Yeah. But having said that, as a supporter of Lahore Qalandars, I would not want anyone else as my captain than Shaheen अच्छा, Afridi, okay. because the fact that he's won us 3 trophies, और उससे पहले जो record था शाहीन से पहले, loss, not just loss सही but है, the last team. bad loss. So for me, if he's getting results, अब आप क्या डिबेट कर सकते हैं उसमें कैप्टनसी का कितना रोल था और उसकी टीम का कितना रोल था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द टीम हैज बीन डूइंग वेल। ये सीजन भी वाज नॉट अ बैड सीजन। दे शुड हैव मेड द क्वालिफायर्स। आखिरी गेम में हैदराबाद ने चेस कर लिया बड़ा रिमार्केबली, सो दे डिडंट मेक इट, बट आई थिंक लाहौर कलंदर फैंस आर ओवरऑल हैप्पी विद हिम। मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे ओवरऑल पीएसएल की बिग पिक्चर, देन विल टॉक अबाउट किस तरह का ये सीजन गया। यार मेरा तो ख्याल है कि काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। जब शुरू हुआ था यूएई में, अगर आप देखो तो क्वालिटी काफी बेहतर होती थी। जब शुरू के 2-3 सीजन में आई थिंक इंग्लैंड के दर्जन, लाइक एटलीस्ट डजन प्लेयर यूज्ड टू कम, और ऐसे प्लेयर्स थे जो दे वर नॉट इवन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैरी ब्रुक और जो डेविड, जो ऑस्टिन टिम डेविड हो गया, डेविड जो बेसिकली आईपीएल खेल रहे दे द फाइंड्स ऑफ पीएसएल। तो शुरू में आई थिंक क्वालिटी काफी हाई थी, और विद टाइम इट हैज गॉन डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। इस साल क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इतने ज्यादा आए हैं, तो मेरा ख्याल से उससे थोड़ी बचत हो गई है। हैं थोड़े बाबे ऑस्ट्रेलियन, मगर मैंने थोड़ा बीबीएल भी देखा था, तो बीबीएल में देवर टॉप परफॉर्मेंस, सिडल 41 ईयर ओल्ड या स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया में भी आई डोंट नो, या तो उनकी मसला है बेंच का। तो इस दफा क्वालिटी जो थोड़ी बच गई है वो थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियंस के। ये मैक्सवेल फॉर एग्जांपल वाज अ बिग मैक्सवेल सारे हाँ पुराने हैं, मगर देयर स्टिल देयर। यार अगर तुम आईपीएल को देखो, मुझे शुरू से याद है जब आईपीएल शुरू हुआ था, तो पहले सीजन में सलमान बट खेल रहा था, आपका सोहेल तनवीर खेल रहा था। बेस्ट बॉलर वो सोहेल तनवीर, फिर शोएब अख्तर ने केकेआर में खेला। तो इंडिया में इतने स्टार T20 में नहीं थे जब आईपीएल शुरू हुई है। अब इस लेवल पे आईपीएल के जो इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप का जो सबसे जबरदस्त था न्यू फाइंड, क्या नाम था, जेकब बैथल, जो लेफ्टी है इंग्लैंड का, जो लड़का यंग बच्चा जो था जबरदस्त, मतलब ही इज ऑन द बेंच इन आईपीएल। तो आईपीएल अब इतने उनको इतना फायदा हुआ है कि उन्होंने उसको प्रॉपरली, उसको पहले सारे कोचेस फॉरनर्स होते थे, ट्रेनिंग सारी वो लेके आया बाहर के टॉप प्लेयर्स, स्टीफन फ्लेमिंग, रिकी पॉन्टिंग। तो अब फाइनेंशियली बहुत बड़ी लीग है ना आपके पास, जाहिर है पैसा है उनके पास, तो देख पैसे इट्स नॉट अबाउट मनी। ये पाक पीसीबी का ठीक ठाक पैसा है यार, ये क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं और इतने कोचेस होते हैं, तो उन्होंने अपना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। इस वक्त टॉप सारे कोचेस, सारे कैप्टन्स इंडियन होते हैं, सारे टॉप परफॉर्मर्स इंडियन है। आर्चर को तुम देखो ना, किस तरह खेल रहे हैं वो लोग आईपीएल में। तो पीएसएल में मेरा तो ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म,
और मैं काफी आप लोग बात कर चुके हैं, मेरा हमेशा से ये है कि इट्स अ क्योंकि इट्स क्वालिटी ना थोड़ी कंसिस्टेंट नहीं होती, जाहिर बात है। कुछ जैसे हर टीम में एक दो बॉलर लूज मिलेंगे बैट्समैन को, तो ही विल एंड अप स्कोरिंग। मगर यू कैन स्टिल लुक के भाई फास्ट बॉलर कैसे खेल रहा है कोई नया प्लेयर, या शॉट सही मार रहा है, सारे लेग पे तो नहीं घुमाया जा रहा है। या इज ही डेथ बॉलिंग में प्लेइंग? आप यॉर्कर्स मार सकते या हो, चेंज ऑफ पेस मार इज ही सकते हो कि एक ही इज ही लेंथ पे कराए जा प्लेइंग रहे हो। एग्जैक्टली 360 खेल रहा है, किस प्लेयर अच्छे बॉलर को शॉट खेल रहा है नहीं खेल रहा। अब जैसे साहबजादा फरहान पिछले साल एंड में आया था पीएसएल में, ही एंडेड अप टॉप स्कोरर ऑफ द पीएसएल, टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड, मोस्ट सेंचुरीज, और अभी तक चल रहा है। तो वो सिलेक्ट तो पीएसएल से ही हुआ था ना। तो ये भी ठीक नहीं है कि हमें पीएसएल से प्लेयर मिला ही नहीं आज तक। फरहान तो आया ही पीएसएल से, वो भी एक पीएसएल से, उससे पहले जी। उसको चांस नहीं मिलता था। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उसको विद टाइम it can be used better, but Right. especially to spot a young talent. ठीक है, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ओवरऑल मुदस्सिर, आप देना चाहेंगे ओवरव्यू, कैसी लगी आपको गेम्स? 4 टीम्स दैट हैव क्वालिफाइड, मुल्तान सुल्तान, आपका हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड, हैदराबाद, एंड पेशावर ज़ल्मी हैज बीन डूइंग वेरी वेल। क्या कहेंगे? द बेस्ट टीम्स क्वालिफाइड, कैसी लगी गेम्स ओवरऑल आपकी? डिसअपॉइंटिंग फॉर कलंदर्स एंड कराची किंग्स ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, शुरू में तो दिल भी नहीं चाह रहा था ट्यून इन करने का, क्योंकि वो पुरानी टीम्स तो कराची, वो अभी भी वार्नर से थोड़ा बहुत फाइट आई है, वरना वो इज नॉट अ स्टेबल टीम। और जो कुछ टीम्स हैं वो अभी तक वो इनर्शिया पुराना चल रहा है। रिजवान ठीक है, आई थिंक इज पास्ट इज प्राइम। तो लोग थोड़ा तंग भी थे ज्यादातर, तो मतलब पब्लिक सेंटिमेंट, अब फिर राइट और रॉन्ग, एवरीबॉडी वांट्स अ चेंज। और फिर वही हुआ कि पीएसएल जब शुरू हुआ तो वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, यंग लोग नजर नहीं आ रहे थे। तो वो क्राउड भी नहीं तो थे ना, उससे भी इफेक्ट हुआ है थोड़ा। क्राउड से भी होता है। फिर मेरा ख्याल से पीएसएल की बचत इसलिए हो गई इस साल, क्योंकि नई टीमें थी, तो मैं फिर भी ट्यून कर लेता था। और खासकर नए जो प्लेयर्स, क्योंकि 3 टीमें नहीं हुई तो काफी प्लेयर्स को चांस मिला है। तो इन द एंड इट गॉट एक्साइटेड। जो जो फोर्थ स्पॉट का जो कंपटीशन हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कराची ने क्वालिफाई किया ग्लेडिएटर को हरा के, फिर बाद 6-4 घंटे बाद लाहौर ने कराची को आउट कर दिया, अगले दिन हैदराबाद ने लाहौर का आउट कर दिया। तो यार दैट वाज पहले हमारी इनक्रेडिबल। 5 टीमें होती थी, उनमें से 4 क्वालिफाई करती थी, तो कोई एग्जैक्टली, कंपटीशन ही नहीं होता था। वो होता था कि एग्जैक्टली। लास्ट किसने नहीं आना, लाहौर अक्सर लास्ट आ जाती थी। अब ये है तो कि 8 में से 4 करना है, सो वो फिर उस तरह से कंपटीशन जरा लास्ट स्पॉट के लिए ज्यादा हो रही है, विच इज हाँ, गुड आई थिंक। तो जान पड़ी है पीएसएल में आखिरी 4-5 गेम्स में। अब अच्छे एक्साइटिंग गेम्स हुए हैं, क्वालिटी बढ़ी है, क्योंकि प्लेयर्स, थोड़े जो यंग प्लेयर्स थे वो सेटल हो रहे हैं, और फिर ऑस्ट्रेलियन अच्छा खेल रहे हैं। तो आई थिंक अब इट्स वॉचेबल, स्पेशली जो प्लेऑफ्स आ रहा है, तो अच्छे मैच, 3-4 मैच जो बाकी हैं, दे विल बी रियली एक्साइटिंग। कोई कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस की है, शोएब आपको या आसिफ को? आर यू गोइंग विद पेशावर जल्मी बिकॉज क्लियरली दे द टॉपर्स, वो आखिरी एक गेम लाहौर से ड्रॉप किया वरना अनबीटेबल थे? या कोई और टीम आप कहेंगे ओवरऑल जिसने आपको इंटरेस्ट किया हो, या कोई मैच का हवाला देना चाहेंगे? Right, Mark. जी आसिफ भाई, आप करें No, बात। you go ahead. I don't even know. अच्छा, आनी पेशावर ज़ल्मी, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगेन मेरा थोड़ा सा बायस है, मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके थोड़ा एज अ फैन परेशान रहता हूँ पिछले 4-5 साल से, जो उसका डिक्लाइन है। पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप लेके उतरी थी, तो उसके मैचेस थोड़े मुझे एक्साइटिंग लगे। और मुझे नाहिद का आना, डिस्पाइट के फैक्ट कि नाहिद चला गया था, नाहिद हाँ भी, और नाहिद वो अब चले दूसरा। गए हैं, तो हाँ, लेकिन जब वो थे तो आई मीन इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग लाइनअप। और मेरा ख्याल है वही एक बॉलिंग लाइनअप है जो मेरा ख्याल है 8 टीमों में से जो लगी, जो कि इस काबिल थी कि उसको देखा जा सके। और yeah, so I think by far Peshawar Zalmi was the most impressive team. Also, I think it has a lot to do with the management. Again, मैं टॉपिक चेंज नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज we're gonna go on and on and on. बहुत ज्यादा कमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त आईक्यू लेवल की, बहुत ज्यादा कमी है वो तो अक्लमंदी की। और मैं ये मैं कि एक वेंटिंग स्प्री में नहीं जाना चाह रहा, ट्रस्ट मी। अभी आई मीन रिजवान ने जो भी कमेंट्स किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या वो आईक्यू की across भी है the और board, ईक्यू की भी, इमोशनल वो कोशेंट भी दोनों जरा सा ही। कम। हाँ वो ईक्यू भी कह लें आप, बड़ी शदीद बेसिक इंटेलिजेंस की बात करने की तरीके की, उर्दू इंग्लिश पश्तो कोई जो भी लैंग्वेज है, हाँ, बहुत शदीद कमी है पिछले 4-5 साल में।
और ये पेशावर ज़ल्मी का भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है उनके जो पवेलियन में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे। प्रॉब्लम ये है कि एज ए फैन, मेरे जैसे जो फैन है वो किसी एक बंदे को पकड़ के, मिसबाहुल हक जैसे बंदे को उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, घिसा पिटा मेरा सेंटेंस है कि एज फैंस वी हैव द लग्जरी ऑफ जस्ट गो अहेड एंड से इट आउट लाउड। हमें ये नहीं पता होता कि इन लोगों का बैकअप क्या है, इन लोगों के बैकअप्स कौन है। इन लोगों के बैकअप्स यही हैं, वहाब रियाज है। आपको पता है पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच आजकल कौन है? there is a guy, there is a Pakistan has a batting coach right now. I can bet you, I know मुदस्सिर भाई से बड़ा मैंने क्रिकेट फैन नहीं देखा, I can bet you मुदस्सिर भाई does not know his name. मोहम्मद वसीम तो नहीं है? नहीं, अभी अनाउंस हुआ है। You would not have seen him. फॉरेन कोच है, फॉरेन तो कोच है नहीं, कोई। पाकिस्तानी को बैटिंग कोच। एनीवे, लेट्स अच्छा। गेट बैक टू टॉपिक के नहीं तो थोड़ा है सा कौन? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आई डोंट नो हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, आई डोंट नो। वो पिछले कुछ 6-8 महीने से 12 महीने से पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच है वो। एक बैटिंग कोच है और I thought he was Pakistani team's masseuse. Seriously. और I came to realize no, he's a batting coach of Pakistan. और जो बॉलिंग कोच है ना, वो जो बंदा जो थ्रो डाउन करता है। So point being कि पेशावर ज़ल्मी में थोड़ी सेन पर्सनालिटीज मुझे नजर आई पवेलियन में बैठी हुई भी। और उसका भी इम्पैक्ट आपको नजर आया। अजहर महमूद is one of their main guys, मिसबाहुल हक है, अजहर महमूद है। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक अराउंड किया चीजों को, जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस थी उनको इंटेलिजेंटली यूज किया और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। हाँ नहीं, पेशावर ज़ल्मी has done well, स्पेशली जो कुसाल मेंडिस और बाबर आजम की जो एक पार्टनरशिप कंसिस्टेंटली लगती रही है, आई बिलीव दे आर द टॉप 2 परफॉर्मर्स बैटिंग में, मोस्ट रन स्कोरर्स, सो दैट हैज हनीफ मेड द मलिक, डिफरेंस। sorry, Hanif Malik. As हनीफ of मलिक May is the guy. 2025, he has been the अच्छा। batting coach of the Pakistan national cricket team. मेरा ख्याल है He is उसकी a former फैमिली भी नहीं first जानती class होगी। cricketer from Hyderabad. अच्छा, उन्होंने एक वो सिंबॉलिक वो DEI के लिए हैदराबाद का बंदा रख लिया, मेरा ख्याल है जरा वहाँ वो भी खुश you got the point पे। I mean, यही है ना कि अब आपने मिसबाहुल हक को पसंद नहीं किया आपने, और इस तरह के लोगों को पसंद नहीं है कि जी बहुत डिफेंसिव हैं, उन्होंने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट को 90s में पहुंचा दिया है, तो उसकी जगह यू गॉट हनीफ मलिक नाउ। See, so that's what I'm trying to tell you is कि जब बाबर आजम की कैप्टनसी से हम सब ने बड़े शौक से निकाला था कि उसको फाइन लाइन ऊपर नहीं करनी आती, थर्ड स्लिप नहीं लगानी आती, तो उसके बाद से आप देख लें क्या होता जा रहा है। Again, I'm not going to get into the topic of बाबर आजम should be brought back, लेकिन कभी कभार ना आपको रियलिटीज देखनी होती हैं। राइट। Anyway, पेशावर ज़ल्मी was my favorite, of course. अच्छा, एक और टीम के बारे में आप बात करें, वो है मुल्तान सुल्तान। नाउ बहुत सारे फैंस को ये नहीं पता होगा कि ये दिस इज नॉट द ओल्ड मुल्तान सुल्तान, ये वो वाली टीम नहीं है। बेसिकली हुआ था कि ये सियालकोट था, फिर सियालकोट आखिरी वक्त में उनके कोई जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, दिस वाज देन टेकन ओवर बाय दिस गाय गोहर, एंड देन ही काइंड ऑफ रीब्रांडेड इट। वो उसका मुल्तान से लीनियज है या बैकग्राउंड है, तो उसको वापस मुल्तान सुल्तान बना दिया। तो दिस इज एक्चुअली अ ब्रांड न्यू टीम, सो फॉर देम टू डू सो वेल, and at one point in time they could have made the top 2 teams। और उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि apparently this guy has some cricket knowledge as well। वो उसको मैंने देखा है, वो थ्रो डाउन भी करवा रहा होता है, अपने प्लेइंग भी कर चुका है। he was a first class player, वो खेला हुआ है, बल्कि यंग बंदा है वो, पता नहीं, I think he left Pakistan but लगता है वो बर्गर बच्चा है, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग और उसका खेला हुआ है। I think under 19 भी खेला हुआ है। उसका नाम हनीफ मलिक तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं गौहर, I think वो PSL भी खेला हुआ है, मतलब चांस नहीं मिला, मगर वो प्लेयर, प्रॉपर प्लेयर है, तुम उसका देखो। he just left cricket quick, like 5-6 साल में he was out। हाँ नहीं, that speaks to the fact कि यार अगर आपकी ओनरशिप इतनी खुद इन्वॉल्व हो और पैशनेट हो और खेली हो, उसको नॉलेज भी हो, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब एज अगेन लाहौर कलंदर्स की मैं बात करूं, दे हैव डन वेल, बट एक चीज मुझे कभी कभार लगती है कि यार वो जो उनके ओनर्स हैं वो थोड़े स्टेट मेंटालिटी के हैं, दे आर नॉट रियली ट्रू प्रोफेशनल्स। वो होता है यार वो यारी दोस्ती, फैमिली एंड ऑल दैट, तो उसमें कई दफा हेल्प भी हो जाती है कि यार एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, कम कमराडरी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड फिर अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा, आप जिस तरह हारिस रऊफ की पिटाई हो ही जा रही है, लेकिन जरूर आपने उसको खिलाना और रिटेन करना है, तो इस तरह की फिर आपके पास ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। इसमें मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ, वो उससे भी रिलेटेड है जो मुदस्सिर भाई ने अपनी ओपनिंग पॉइंट दिया है कि ओवरऑल PSL कैसा रहा है, कि IPL के साथ कंपेयर कर रहे थे। बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन IPL and PSL इज लोकल टैलेंट। IPL जो है, आप सही कह रहे हैं कि वो फॉरेन प्लेयर्स बाहर बेंच पे बिठाता है। उनको फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है टू इम्प्रूव क्वालिटी क्रिकेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉरेन प्लेयर्स जाते हैं वहां पे अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, वो एक अलग लेवल अचीव कर चुके हैं।
पीएसएल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोकल टैलेंट जो है वो ऊपर नहीं आ रहा, लोकल बिल्कुल। टैलेंट इंप्रेसिव नहीं है। नहीं है। कुछ दो चार लड़के आगे पीछे से रैंडमली आपको नजर आ जाते हैं। फॉरेन टैलेंट पे हम बहुत ज्यादा एक तो रिलाई करते हैं, सेकंडली हम जो पाकिस्तान के 15 से 20 जो टॉप लड़के हैं ना उन पे रिलाई कर रहे होते हैं टू ब्रिंग क्वालिटी एंड फ्लेयर इनटू द गेम। या लाहौर के अंदर मेरे ख्याल में they actually play smartly, although I mean it sometimes doesn't work out for them, and I think in the near future आप देखेंगे, मुझे लगता है कि एक दो को शायद ये निकाल देंगे अगर इस तरह चलता रहा, हारिस रऊफ एंड ऑल कंपनी। आई थिंक वो फैमिली फैमिली तो करते रहते हैं, बट दे एक्चुअली नो कि लोकल टैलेंट में यही लड़के हैं। हम्म। उनको पता है कि रिलायबल अवेलेबिलिटी है लोकल टैलेंट की। फखर जमान, शाहीन, या राउफ, couple अब्दुल्ला of others I शफीक, think, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक शफीक। एक कोर टीम उन्होंने डेवलप की है, हाँ, विच इज उन्होंने गुड। कोर टीम डेवलप की है और वो टीम है जो कि 10 के 10 मैचेस भी खेलेगी, अवेलेबल रहेगी, राइट। और रिलेटिवली सस्ते में मिल भी रही है। तो आई हाँ। थिंक दे इन अ वे दे आर प्लेइंग स्मार्ट। आई मीन वन माइट आर्ग्यू और कि आई थिंक मुझे मुझे वो चांस अच्छा देते हैं, वो जो उनका ना जो एक एक स्लॉट हर दफा फारूक ना को वो जो शुरू दिया से था ही ना उन्होंने, नईम को या फारूक को, जो एक ओपनिंग स्लॉट उनका होता है। बल्कि एक मुझे याद है, एक लड़का था सियालकोट का, ताहिर बेग, बुरा ताहिर नहीं बेग, खेला, लंबा सा, हाँ अच्छा लंबा खासा सा लंबा। लड़का। मुझे लगता है उस बंदे ने डोमेस्टिक नहीं खेली तो फिर यही होगा। ही वॉज गुड। ताहिर बेग खेला है ओपनिंग में, फिर वो नईम है, फारूक है, सलमान मिर्जा दिया उन्होंने बॉलिंग में हमें, सलमान मिर्जा। गुड। तो ये पेसर ले आते हैं एक अच्छा, ये उनका प्रोग्राम अच्छा तगड़ा है। जमान खान बेसिकली आया था वहां से। जमान, हाँ, पेस प्रोग्राम लेकिन अच्छा है, आई और थिंक ओपनर में ये चांस देते रहे, ये क्रेडिट है। कुछ टीमें हैं जैसे कराची किंग्स है, वो टॉप 3 तो पक्का होता है कि वो बाहर से खिलाएंगे। अब वही पूरा मैच पी रहे हैं ना, वो उतने हाई क्वालिटी प्लेयर खिला देते हैं, वार्नर, जेम्स विंस या कॉलिन इंग्रम। वो लोकल टैलेंट 6-7 पे आता है कराची किंग्स में, 15वें राइट। 16वें ओवर में कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कोई if you डेवलपमेंट look नहीं होती। just Shoaib कह रहा है, and I've always had this criticism of PSL, okay, if you look across the board, batting talent, the most, swashbuckling innings, the, huge centuries and minimum balls, the most devastating innings seem primarily to be the foreign players. Sri या Lanka का हो गया आपका, कुशाल मंडे सर, Warner अभी जो is the मैक्सवेल ने जो इनिंग yeah, खेली है आपकी exactly. हैदराबाद में। There, aside from Usman Khan and Babar has had one. I mean, there's not. I mean, Fakhr, these guys are playing well, but the actually huge impactful innings are really not coming from the Pakistan players. So that's a discouraging thing. Mujhe ye कि, you're asking teams. I'm from Islamabad, so I have some loyalty, although I don't like the captain, but that's okay. I want them to win. But overall, I'm looking at the players. Especially batting mein, you see your Samir Minhaj, you see your Maaz Sadakat. I want to see bowling mein, Ittifaqan you don't have Naseem Shah playing, but Ubaid Shah, Hunain Shah are doing well. Akif Javed, I want to see him. Ye jo, the younger guys, Ali Muhammad Raza, Ali, Ali Raza, Reza। these are good players to see. And of course, you can see that they have the raw talent, but they don't have it all together yet. Ali Raza is bowling 150, but he's getting hit in every part of the ground. This is where you have to harness that talent and, capture it and build from there. And that's where you transition from PSL to the international team. Abakli Yadaw, Ihsanullah a few years ago was the big name on everyone's tip of everyone's tongues. Got injured, got mismanaged. He's nowhere to be found now. So this is where you find the talents, you identify them, you harness it. But that's always been the big tough part from Pakistan. Taking them from successful junior teams to successful senior teams, that's not happening. And for any number of reasons. But that's my thing. I'm watching to identify the young guys and hope and pray that kisi na kisi tarah se they get harnessed and nurtured and groomed to go to the top level, because that's what we all want. अच्छा, एक और चीज भी होती है कि आप होप करते हो कि यहाँ से बेशक किसी टीम ने जीतना है, किसी ने हारना है, बट जो टीम हारे और जो ब्लंडर्स हैं वो फिर आपके रेप्लिकेट ना हो इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं तो आप थोड़ी सी एक एविडेंस देखो कि यार अब वो लड़के सीख गए हैं। अब उसमें थोड़ी मुझे चीजें डिसअपॉइंटिंग लगी हैं, जिस तरह के हमें पता है कि हारिस रऊफ एंड शाहीन हैड बीन स्ट्रगलिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, डेथ में स्पेशली। और मुझे था कि यार थोड़ा सा पीएसएल में लास्ट सीजन में उनको इरफान न्याजी पड़ गया था और अभी खुशदिल शाह पड़ गया है, तो हर सीजन में वही चीज हो रही है। हैविंग सेड दैट, शाहीन हैज हैड अ रिस्पेक्टेबल ओवरऑल, अगर आप सीजन देखो तो ही हैज हैड सम विकेट टेकिंग भी, आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट एज वेल, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही स्पेशली डेथ के अंदर। अगर तुम ये देखो कि शाहीन को जो हम कह कह के थक गए कि भाई इसको शुरू में ही करा दो, तो वो यही तो कर रहा है। वो थोड़ा उसमें तो 3 ओवर कराने लगा यार, वो 18 करा रहा है, वो 18 में भी उसकी पिटाई हो गई। वो 3 ओवर ऊपर ही जब रिजवान, हाँ
शाहीन से वो 6 ओवर शुरू में करा रहा था, क्योंकि एवरीबडी नोज कि वो ही इज नॉट बाद में इफेक्टिव। नहीं, उसकी यूटिलिटी ही उसी में बनती है, हाँ अगर आपने उसको रखना बिल्कुल। है हाँ। उसमें तो वो एक ले रहा है चीज, उसकी। ये एक चीज अच्छी हुई है पीएसएल में, जो बल्कि 1-2 साल से है, कि एक जमाने में हम कहते थे स्पिनर नहीं है या स्पिन ऑलराउंडर, वो शादाब और नवाज खेले जा रहे थे 4-5 साल से। अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है काफी। अब जैसे सुफियान मुकीम को निकाल दिया था इंटरनेशनल में, ही हैड वन कपल ऑफ, जैसे इंडिया के खिलाफ ही हैड अ बैड गेम, मगर ये कि इन पीएसएल ही लुक्स बेटर। और फिर अरफात मिन्हास अच्छा लग रहा है ऑलराउंडर में। अब जैसे नवाज टाइप का वो, बल्कि बैटिंग में काफी वो प्रेशर में रन, छोटे रन कर रहा नहीं है उसने, 20-25, हाँ, मगर अभी लास्ट में अच्छे भी मारा मैच, था उसने या मैच इस्लाम। विनिंग, बड़ा उसकी ना टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है उसका, अरफात मिनास का ना। दोनों भाइयों तो का आई थिंक। दोनों भाई नहीं, हाँ मगर अरफात ने तो प्रेशर में नीचे रन किए में काफी, मैंने काफी देखा हुआ है अरफात को ना। ये आता भी, जैसे अभी कौन सा टूर्नामेंट हुआ इमर्जिंग, उसने एक मैच खेला है डायरेक्ट फाइनल, और आई डोंट नो ऑफिशियल मैन विकेट ऑफ ले द ली थी मैच उसने, है हाँ। नहीं, मगर ही स्कोर्ड हाँ, क्रूशियल रन इन द एंड। तो विकेट भी ली थी उसने तगड़ा अगेंस्ट प्लेयर है। बांग्लादेश। मुझे मिन्हास होगा टैलेंटेड, और मेंटली अरफात बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह हाँ, के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए पीएसएल से। हाँ। एक तो जो साद लड़का भी अच्छा है जिसको उन्होंने ओडीआई में सात चांस दिया है। सात को मौका, पता नहीं कितने उसने हाँ, उसको कितने ऑन एंड कुछ मैच में वो बैठा भी है। सात भी अच्छा है वैसे, बड़ी यंग है वो लेकिन काफी अभी young भी है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हाँ है वो अभी, अभी भी। ऑलराउंडर आप छोड़े, ये शोएब जो कह रहे हैं ना, आई एग्री विद हिम। ये हाल है कि जो बांग्लादेशी नाहीद और वो जो अशरफुल, हाँ दे वर बॉलिंग देन एनी, लाइक बेटर देन एनी या पाकिस्तानी बॉलर। या नाहीद, और ये अभी हम जाएंगे टेस्ट में देखना। तो फास्ट बॉलिंग जो वीकनेस है ना, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इतनी वीक कभी बेंच हो, या ओवरऑल जो करंट प्लेयर्स की फॉर्म, या इवन बेंच। तो पेस का ये दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर द पेस बॉलिंग। हाँ स्पिन और वो तो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, दिस इज वरीसम अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दो फास्ट बॉलर जो नहीं खेले, जो पोटेंशियली अच्छा कर सकते थे और वो स्टेटस को के बॉलर्स को थोड़ा सा चैलेंज कर सकते, एक जमान खान है और एक वो दानियाल लड़का है। आई थिंक दैट वाज अ बिग लॉस, बिकॉज या दानियाल स्पेशली इमर्जिंग के अंदर भी कैन अच्छी बैट, परफॉर्मेंस दी थी उसने। वो कैन आपको याद बैट होगा टू। सुपर ओवर जो है उसने किया था। जमान खान भी ऑस्ट्रेलिया से बड़ा अच्छी करके गया था, डेथ ओवर्स अच्छा कराता है। सो लेट्स सी कि अगर वो वापस आते हैं उनको चांस मिलता है कि नहीं। अच्छा, टू टू मूव द डिस्कशन फॉरवर्ड, एक मैंने टीम बनाई है पीएसएल 11 की। इस टीम के बारे में क्या ख्याल है? कुछ को इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, निकालना चाहते हैं? मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा कैप्टन, ये साइम क्या? अयूब, साइम अयूब, ख्वाजा नाफे, इरफान खान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, और 11वें नंबर पे आप बेशक मीर हमजा कर लें या उस्मान तारिक कर लें। तो इस टीम के ये बारे में कौन क्या ख्याल है आप? ये कौन सी टीम है भाई? ये वो टीम है जो शहजादा शहजादा 11, द शहजादे 11 ऑफ पीएसएल। यार ये, इरफान इरफान नियाजी की बात कर रहे हो? हाँ। यार वो सातवें पे खेल रहे हैं, उसने 2-3 मैच फिनिश किए हैं। अच्छा, चले उनको निकाल दें, किसी और शहजादे को डाल दें। बाकी शहजादों के बारे में क्या ख्याल है? बाकी रिजवान। तो फारिग है सारे। मोहम्मद नवाज को मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा अभी। ये नवाज, आई नो अरफात मिन्हास के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बोथ ब्रदर्स, और दूसरे भाई को तो आप मैं ऐसे एक्टिवली प्रमोट कर रहा हूँ जैसे मैं उसका एजेंट हूँ। बट देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगेन। मोहम्मद नवाज जो है ना, आई नो कि हम बड़ा थोड़ा वेंटिंग सेशंस में अपने बहुत कुछ बोल जाते हैं कि छोटी गेम्स के प्लेयर हैं ये, और यस देयर इज नो डाउट कि हम एज अ टीम ही बड़ी टीमों के खिलाफ फिनिश नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टीमों के साथ हमारा काफी डिफरेंस अब हो गया है क्वालिटी का। मोहम्मद नवाज पॉइंट के ऊपर से छक्के लगाता है। मोहम्मद नवाज आपका आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स है इस वक्त टीम के अंदर। आपकी टीम में अगर आखिरी ओवर में आपने 3 लगाने हैं ना, तो आई डोंट थिंक आई वुड बेट ऑन, आई वुड प्रॉब्ली बेट ऑन राना फहीम फहीम को नहीं अशरफ भेजेंगे? लगाने फहीम वाला अशरफ, shot। हाँ, राणा साहब। राणा साहब भाई, अगर मैंने आखिरी ओवर में 19 रन बनाने हैं ना, तो आई वुड हैव फहीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज ऑन द पिच। अच्छा, so समद को नहीं भेजेंगे आप? the अब्दुल difference समद को? between those two is Fahim Ashraf जो has जो done it in जो an रेंज है ICC ना, इन जो प्रेशर। मोहम्मद नवाज की but रेंज है। but Fahim Ashraf has done that in an ICC tournament. Nawaz, look, I like Nawaz,
He has always failed in ICC tournaments. It doesn't mean it matter a good team or bad इंडिया team. के खिलाफ एक अच्छा खेला था वो एशिया कप या Yeah, कुछ but I वो mean, इनिंग याद है बट उसके अलावा so अगर नवाज का ये Ireland के कि खिलाफ खेल रहे हो, put Nawaz in, देखिए sure. जो But जो if you're प्लेयर्स playing, स्पोरेडिकली डिफरेंट नंबर्स पे भेजे जाते हैं ना, हाँ, उनको फेलियर का भी आपको एक गेज बनाना पड़ेगा। right, आप right. उनका स्ट्राइक रेट देखते हैं या आप उनका अगर आपने उनकी एवरेज देखनी है, आई एम नॉट टू श्योर कि उसमें वो उन्होंने आना है को 3 बॉलों पे एक छक्का मार दिया, मिली उसको 3 बॉलें, कभी ओकेजनली वो 10वें ओवर में आ गया, अब उसको समझ नहीं। लास्ट टाइम 10वें ओवर में मेरा ख्याल है 1905 में आया था, ठीक है, अब वो 10वें ओवर में आ गया, ही डजंट इवन नो हाउ टू हैंडल हिमसेल्फ एंड कंस्ट्रक्ट एन इनिंग्स। जो लड़के इस तरह स्पोरेडिकली भेजे जाते हैं ना कि शादाब भाई जो हैं वो 18वें ओवर में उनको हाइड करना होता है, तो अब आप उस वक्त आप मोहम्मद नवाज को भेज देते हैं ताकि हाँ उनकी स्ट्राइक रोटर एवरेज खराब ना हो, और हाँ अगर खराब होनी है तो मोहम्मद नवाज की हो। या तो ये जो इस तरह के लड़के आखिरी ओवर में, अब फहीम अशरफ ने, लोग पता नहीं क्या कुछ, कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरी 4 बॉल पे 11 रन उसने 4 बनाए, बॉल आया Yeah, बिल्कुल, वो बिल्कुल. कभी हाईलाइट नहीं होते, नहीं होती। Yeah, कभी no, no, हाईलाइट no. नहीं। हम लोग Fahim आई थिंक Ashraf is, आई और थिंक मोहम्मद फैन नवाज का भी यही प्रॉब्लम है क्या कि वो अपना एक आधा जो है वो 3 बॉलें खेल के एक छक्का जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसने या एक पुल मार दिया होता है, वो कभी किसी को याद ही नहीं रहता। याद वो रहता है कि जब उसको 14वें ओवर में भेजा जाता है एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, और अब उसको समझ ही नहीं आती है। एंड इट्स ट्रू एक्चुअली, उसको वाकई समझ नहीं आती कि यार वो मेरे पास तो टाइम है। वाओ, हाउ डिड दैट हैपन? I mean, नवाज ने अगर आपको याद हो 1-2 साल पहले न्यूजीलैंड में ODIs थे, उसने सिंगल हैंडली जिताया. You know, there's no question of his talent, and I just think you look at the contrast of the Holland match, which I don't want to isolate one match in the World Cup. जब Fahim Ashraf saved us, Nawaz had 6 runs and 14 balls, and आपकी बात सही है. He didn't know what to do. It's like a deer in the headlights because he was in a situation that ज्यादा तेज So, मारूं या I survive do करूं, agree क्या that Nawaz वहाँ is पे also a product of the misuse of how तो- he's been handled. हाँ Right. फिर तुम देखो कि अभी नवाज का लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज एंटायर कैरियर जितने Yeah. उसने, क्योंकि शदाब नहीं था। जब शदाब होता है ना तो शदाब गॉट प्रायोरिटाइज। शदाब हुई, चलो इसे डिबेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शदाब में जब शुरू में ना शदाब माइट बी बेटर, मगर जब से शदाब को प्रॉब्लम हुई थी 1-2 साल में, तो शदाब नीचे गया था थोड़ा। मैं नवाज को, क्योंकि और दूसरे थोड़ा मुझे लगता है नवाज को थोड़ी, जैसे एशिया में ना आई थिंक नवाज वर अ वेरी गुड पिक ये बांग्लादेश, क्योंकि वो स्लो बॉल करता है, देन ही स्टार्ट देन ही यूज कंडीशन बेटर। तो वो जो श्रीलंका या एशिया में जो T20 पाकिस्तान खेला है उसमें नवाज को बिल्कुल सही पिक किया था एंड ही परफॉर्म। मगर जब शदाब आता है, जो आप सही कह रहे हो, फिर उसकी बैटिंग भी नहीं आती 6 में, वो शदाब उससे ऊपर आता है। अच्छा चलें, और फिर नवाज पे मैंने बहुत देखा लंबी नवाज, डिस्कशन हुई। मेरा आखिरी पॉइंट मेरा है, हाँ। जस्ट क्विक 10 सेकेंड्स। एज एक कोच में और मेरे जैसे फैन में, या सेलेक्टर्स में और मेरे जैसे फैन में फर्क ये होता है कि वो ये देख लेते हैं कि एक जब बुमराह सामने आएगा या हार्दिक पांड्या सामने बॉल कराएगा, वो अरफात मिन्हाज को 1 सेकंड में पिक कर लेगा कि उसकी ये एक आर्क है, उसमें उसकी गेम है। ठीक है, आपके पास क्या कितने परसेंट चांस है कि अरफात मिन्हाज उसको हिट कर लेगा, और कितने परसेंट चांस है कि मोहम्मद नवाज उसको हिट कर लेगा? आपने ये देखना है, आपने ये देखना है कि किसकी रेंज ज्यादा है। ऑन अ गिवन डे हो सकता है कि अब उस्मान खान भी सेंचुरियां बना रहा है, ये भी अल्लाह की कुदरत है, लेकिन ये है कि एज ए सेलेक्टर, एज ए कोच, एज मैनेजमेंट, आप अब जो नेट में भी जो बुला लिया करते थे इमरान खान वगैरह, और वो स्किपर जो था क्या नाम है, इंतखाब आलम, वो क्या देखा करते थे? वो रेंज देखा करते थे। हाँ, हुक कैसा करता है, कट कैसा करता है, पुल कैसा करता है। आपने ओवरऑल रेंज देखा। अरफात मिन्हाज का फ्यूचर है, ही हैज टू प्रूव मोर। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग में आपके पास उससे ज्यादा बेटर ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज से। यार मगर नवाज का तो मैं नहीं लगता कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जब ये बाहर जाते हैं एशिया से बाहर, तो नवाज ने स्ट्रगल किया है उन पे जो पे वही ना स्ट्रगल Bowling wise. बॉलिंग वाइज, बैटिंग नहीं, बॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि वो एशिया में बेहतर है बॉलर। नहीं तो आपको शादाब से भी तो बॉलिंग से ही मसला है ना ज्यादातर। नहीं, मगर शादाब जब सही होता है ना, तो शादाब बोल्स बेटर इन ऑस्ट्रेलिया। आपको तो शक्ल नहीं पसंद, तो आप क्या I know. उसका मैं क्या कर I सकता feel हूँ? bad. यार अभी I'm so फॉर्म, biased. वो जो खैर वो अलग बहस है। वो शादाब एक जान, अभी मैं खुद कहता हूँ 2 साल उससे खराब गए, उससे पहले वो शादाब नंबर काफी 7 अच्छा प्लेयर। बैटिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अच्छा चलें, हमारे पास टाइम की थोड़ी किल्लत है। नवाज पे काफी हो गई बात। 2 और मैंने बहुत लिस्ट आपको दे दी थी, बट आई थिंक 2 people deserve some discussion in this list that I gave you. One is Saim Ayub and the other is Salman Agha.
because these two were core members of our playing 11, right, in the World Cup. So now, where do you see their future? Poor run, consistent poor run in the World Cup, and now consistently doing poor in PSL as well. Do you think the time is up, और या इन्हीं को आपने persist करना है? सलमान आगा को चलें बाद में कर देते हैं, साइम अयूब से पहले स्टार्ट कर लेते हैं. कहाँ देखते हैं आप? चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस दिया, अब वो पहले नो लुक शॉट मार देता था, अब वो नो लुक शॉट भी नहीं उसकी लग रही. यार देखो, वो ही हैज टू ब्लेम हिमसेल्फ. तो अब उसको लकी प्लेयर है पाकिस्तान में, मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना लंबा चांस कभी किसी को मिला है या मिल सकता है. अब वो चलो, वो ये भी था कि ओडीआई में तुम उसका रैकेट देखो, या वो खैर इंजरी से पहले की बातें हैं, ही वाज एवरेजिंग 45 और 2 हिस्टोरिक सीरीज में यार बैक टू बैक, दैट वाज इनक्रेडिबल. तो ये नहीं था कि उस बंदे में टैलेंट नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया में 100 किए, एक और फिर साउथ अफ्रीका में किए. तो ही वाज, आई मीन, टू बी फेयर, ही लुक गुड. मगर ये क्या अब हद हो गई है मेरा ख्याल है. बेचारे T20 से ड्रॉप बनता है ये, क्योंकि रन नहीं हो रहे उससे. प्रॉब्लम ये है कि वो ओडीआई से भी ड्रॉप हो जाएगा. This is the issue. So, Mira, look, I'm someone who has been behind Sami Ayub from day one, because I always say put as many match winners as you can in the team, because he can single-handedly win the match for you. Uski bowling bhi hai, so that helps as well. But at the same time, like you said, I mean, how many chances are you going to give someone? Especially जब आपके इतने ढेर सारे openers हैं who can come and take his place. That's the thing. It's not as if we have a vacuum of openers and there's nothing, a dearth of openers. There's so many people who can come and take his place. But ये जो format confusion होता है, that's the issue. Yeah. So I'm absolutely on board with replacing Sami Ayub in T20s, right? His ODI record is actually very, very strong, and he was not a bad test batsman as well. So yeah, it's this recency bias. You see him, he's doing so poorly recently, he's doing so poorly in PSL, so that doesn't mean you banish him from every single format. You don't have to do that. बात भी नहीं कर रहे, अभी तो हम T20 के ऊपर फोकस कर रहे हैं. So T20 में उसको निकालो बेशक, that's fine. Yeah, I still think ODIs में although he was the all-rounder की रैंकिंग में नंबर 1 पहुंच गया था वो. For some reason, I don't know. मगर bowling भी नहीं चल रही, और दूसरा ये कि he was the most expensive player in PSL, ironically. हाँ. मगर देखो 12 करोड़ या पता नहीं कितने मिले उसे. अब 2 मैच में अगर वो कुछ कर दे तो फिर मसला पड़ जाएगा. And his last international appearances, his bowling has still held up. ठीक है, PSL में हो ना हो, but internationally his bowling has still actually held up. लेकिन शादाब से आप कहते हो उसकी बैटिंग का आपको फायदा क्या है? He is a primarily a bowler, तो फिर आप वही लॉजिक इस पे लगाओ ना कि वो आप उसकी बॉलिंग से खुश हो जाते हो फिर आप. I don't think Shadab is, even batting wise, is good enough to replace a set specialist batsman. That's my thing. I wouldn't put him in just for his batting. If he cannot bowl, then I don't want his batting there. That's the thing. I think डिबेट बची नहीं है. डोंट वी थिंक कंसेंसस है कि भाई साइम का ड्रॉप बनता है T20 से? Yes. हो चुका है बस. He's been dropped already. अच्छा, so to answer that question, yes. सलमान आगा पे आ जाते हैं. इनके बारे में क्या कहेंगे? मौसूफ को मैं पूरा 3-4 महीने एक ही चीज कहता गया. तमीज से नाम लिया करो हजरत सलमान. मैंने मौसूफ का है, मौसूफ. अब मैं क्या और उनके बारे में इज्जत से बात करूं. सलमान का भी वही साइम वाला है, मगर उसका वो मुझे लगता है वो ओडीआई से नहीं ड्रॉप होगा. T20 से ओडीआई में तो बात ही नहीं कर रहे. ओडीआई में तो ही इज डूइंग वेरी वेल. आई थिंक T20 से कर देना चाहिए, क्योंकि PSL में भी रन नहीं हो रहे. उसको बड़ा अच्छा बहुत मौके मिल गए यार. एंड इट्स नॉट जस्ट PSL पे होता तो वो आसिफ वाली बात की यार, PSL को एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एशिया कप में आप फ्लॉप हो रहे हो, वर्ल्ड कप में आप फ्लॉप हो रहे हो, और आपको आपकी अपनी फ्रेंचाइज कैप्टन नहीं बना रही. आपको अपनी फ्रेंचाइज डेविड वार्नर के जानने के बाद नहीं कैप्टन बना रही. So I don't disagree with you, but to play devil's advocate, फिर कप्तान कौन होगा आपका? That's the question. National team. यार वो मैं बता चुका हूँ, जो PSL जीतेगा वो कैप्टन होगा. यार मेरे लिए आप किसी को भी करंट टीम में से बना दो ना, इट विल बी एन अपसाइड. किसी को भी बना दो. आई डोंट, आप जिसको बनाना चाहते हो बना दो. मैं आई विल बी एन अपसाइड. I'll take Fakhar. मैंने तो किसी का ना. नहीं. I don't think Fakhar should be, but if it's a choice between Agha and anyone, I'll say go for it. देखो 4 टीमें बची हैं और 2 कैप्टन रह गए, बाबर है और शदाब है. इन दोनों के अलावा कौन बनेगा? ये इन दोनों में से एक बनेगा, कंफर्म है. I still think Babar should not be in the T20 team. I mean, he's had a good series, but I mean, look at BBL. Look at when he was playing against real top competition. He's playing completely different. उसके एक अगर आपने look at the level of competition. I'm sorry. एक बाबर ने मारा है जो मशहूर नहीं है उसका, वो ऑफ ड्राइव सबको पता है. एक शोएब को शायद पता हो, एक वो शॉट मारता है फास्ट बॉलर को
क्या कहेंगे उसको, कवर ड्राइव है, हाँ, क्या है बोले, कवर ड्राइव, हाँ। कवर ड्राइव उसने मारी है बड़े दिनों बाद, जो वो अपनी तो बेस्ट उसकी क्लासिक, उसकी और कोहली की सबसे ज्यादा मशहूर है कवर ड्राइव में, तो ये नहीं, दोनों नहीं की कवर मशहूर ड्राइव कोई नहीं शक यार, नहीं वो है। स्क्वायर कट भी नहीं है, वो इस तरफ अच्छा, मारता वो है। बैकफुट पे पंच मारता है बिटवीन हाँ, थर्ड मैन। हाँ, ठीक वो है। उसने 2 साल बाद मारा है भाई वो। मैं ये नहीं कह यार, रहा कि वापस आ जाएगा, मगर इतना अच्छा बाबर को मैंने खेलते हुए नहीं देखा। और सब मिसबा जो कह रहे हैं ना, शोएब मिसबा आया पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला कि बाबर जैसे खेलता था ना, वो वैसे ही खेलेगा जैसे पहले खेलता था। अब हम लोग उस बेवकूफ, मैं तो कहता हूँ उस कोच को भी फायर करें, माइक हैंसन को, यार इतनी गधोमारी प्रैक्टिस आती थी। वो स्लॉग्स, बाबर को वो स्लॉग सिखा रहा था छक्का मिड विकेट पे, वो उस बैट्समैन को जो जिसके लिए 2 चौके कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो बाबर को, या और बाबर के जो जल्मी मॉडल है, हम 3 साल से कह रहे हैं कि बाबर रखो और उसके साथ यंगस्टर डालो। ये क्या करते थे, वो दूसरे एंड पे नमूने पीर साहब खड़े होते थे, पीर साहब गए तो फिर वो नहीं, but आगा यंगस्टर ना सलमान भी हो खड़ा तो कर जरा दिया। एग्रेसिव हो, जैसा कुसाल मेंडिस इज नॉट अ तो यंगस्टर बट तो ही ये इज भी तो वेरी देखो ना एग्रेसिव। कि उसको यूज किस तरह करते हैं, उसके सामने नहीं, नमूने but खड़े he's हुए होते हैं। holding the entire selection committee hostage, saying कि या मैं ओपनर हूँ या मैंने नहीं खेलना है. That's wrong. There are कौन? नहीं so वो many तो नहीं, other आप वन डाउन Babar. खिला नहीं नहीं, सकते हो उसको। बाबर ने नहीं कहा, वो रिजवान था, बाबर तो वन But डाउन खेल रहा है कब but से I यार। mean, नहीं, all तो of अब his तो टू डाउन opponents भी are saying खेला कि है। he must be नहीं an नहीं, opener. बाबर ने नहीं कहा, ये रिजवान था, नहीं, तो अभी तो रिजवान टू करता डाउन था। भी खेला है। अभी तो टू डाउन में तो खैर जगह नहीं बनती उसकी, वर्ल्ड कप में टू हाँ. डाउन इज टू लो फॉर हिम। आई मीन वो तो फिर Yeah, उस वक्त तो आपको थोड़ा स्लॉगिंग की जरूरत पड़ती है आपको, और वो मैं वही एग्री करता हूँ, या ओपनर है या वन डाउन है। और ओपनर तो वी हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस, या वी हैव yes. फरहान, वी हैव फखर, मैं वी इवन हैव मां सदाकत नाउ इन द मिक्स, सो Yeah. आई डोंट मैं नो। ये नहीं कह रहा कि वो पीएसएल से आप सिलेक्ट कर लो, मगर व्हाट आई एम सीइंग, मुझे काफी दिनों बाद बड़ा अच्छा लग रहा है बाबर खेलते हुए। और यार फिर प्रॉब्लम होगी अगर आप अभी कल टीम भेजनी है साउथ अफ्रीका, T20 हो या ओडीआई हो, फिर आप बाबर को डालना पड़ता है वहां, किसी के बल्ले पे बॉल ही नहीं आएगी किसी की साउथ अफ्रीका। तो अब साइम की ठीक है। बॉल पे, साइम की बैट पे आती है. वो T20 में नहीं आ रही थी ना। साउथ अफ्रीका में तो ही उसने जब तूफान ओडीआई, मचाया हुआ था. या I know, ओडीआई ODIs, I know. चलिए Yeah. आखिरी, अभी हमें जरा लंबी हो गई एपिसोड, आखिरी बात कर लेते हैं कि ये तो हमने कुछ जिक्र कर लिया जो प्लेयर्स जिन्होंने डिसअपॉइंट वैसे किया है। आगा का जवाब नहीं मिला तुम्हें, but go आगा on. भी कंसेंसस है यार, नहीं, कोई आगा विचार का नहीं। मैं बता, आगा का फाइनल ये है कि आगा साहब कहीं नहीं जा रहे, वो कैप्टन ही हाँ, रहेंगे। Yes, और I think वी so. विल हैव टू नहीं टॉलरेट तो हिम। क्या व्हाट वुड इट टेक, मतलब है वर्ल्ड कप आप हार चुके हैं, एशिया कप में आपने, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मतलब आप What it मुझे would बता दीजिए take, क्या what it आपको would take is for I mean, Saim. that's a question for people मैं जो कि मैं आपको बताऊं, what it would take is for Saim Kashmiri to become the head of the PCB. Otherwise, तो he's going मेरा to be नहीं, तो मतलब है captain. आप लोग आपका, कह रहे हो अगर कि शादाब शोएब, खान जो है I'm एक not saying I डोमेस्टिक, agree. तो I'm not saying आप I लोग agree. को लग रहा है कि आगा रहेगा कैप्टन? I think possibly. मुझे लग रहा है। हाँ जी, नहीं यार, Yeah, because it's the PCB. That's why. आई थिंक दैट वर्ल्ड कप में वो अगर चलो टॉप 4 में होता तो एक बहाना होता है कि या यार फिर शादाब को बना देंगे। मुझे लग शादाब रहा है बन कि जाएगा, मेरे को शादाब भी लग रहा थोड़ा है शादाब फाइनल में बनेगा। पहुंच गया, शादाब की टीम फाइनल में पहुंच गई, या थोड़ा मुझे तो यही लगता है। that's one small possibility, otherwise there's a big chance he's going to continue. मतलब कंटिन्यू किस बेसिस पे, आपको जस्टिफिकेशन होती है ना आपकी, मतलब है आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट बना नहीं रही, आप इंटरनेशनल में I फ्लॉप पे mean, फ्लॉप हुए जा रहे हो, कि continuity मतलब क्या of है। the नहीं, देखे ना आप, शादाब को हो गया या शाहीन हो गया, वो अगर आपके डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं परफॉर्म, इंटरनेशनल में नहीं करते, फौरन लेबल लग जाता है जी दमाद है जी, ये फलाना है जी, पर्ची है, क्या है, बकवास है। और एक बंदा जो है जस्ट बिकॉज ऑन द सरफेस उसकी कोई कनेक्शन आपको नजर नहीं आ रही, तो उसको आप कह देते हो कि जी हाँ ठीक है कंटिन्यू रहे वो, या कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब वो फिर डबल स्टैंडर्ड्स है ना, उसको भी फिर आप कॉल आउट करेंगे यार ये क्यों, वाई। बिल्कुल कॉल आउट होना चाहिए। होता है यार। बस एक बात बताओ, I mean, शादाब का सारा जो पीक थी ना, वो उसकी शादी नहीं हुई थी, वो टीम में शादी से पहले आया है। उसको शाहीन का दामाद भी यही था. दामाद शाहीन उसको का भी तब यही था. तब हाँ, दामाद तब बोलते हैं जब वो एग्जैक्टली, जब वो एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड में एज अ वाइस कैप्टन गया था, आउट ऑफ नो वेयर आया था टीम में वापस, जो फिट भी नहीं था। तो 1-2 साल पहले नाम लगा ना। शादाब का तो सारे कैरियर शादी से पहले का है, जो पीक थी उसकी। हाँ तो शाहीन भी तो दामाद बाद में ही बना ना, वो भी तो Exactly. टीम से मजाक में पहले आ बोलते हैं हाँ, और क्या। तो शाहीन की Yeah. पीक भी आपकी शादी से पहले की थी, राइट। ये दोनों Yeah. तो बेचारे शादी के बाद नीचे गए दोनों। गए। Yeah. अच्छा चलें आखिर में बात कर लेते हैं कि किन प्लेयर्स ने इम्प्रेस किया। लेट्स ट्राई टू वाइंड अप आवर एपिसोड इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स और सो। सो हमने थोड़े उन प्लेयर्स की बात कर ली जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, किन प्लेयर्स ने, स्पेशली यंग प्लेयर्स में किन्होंने आपको एक्साइट किया है। देयर इज अ गाय फरहान जो हमारा अंडर 19 का कैप्टन भी था, समीर मिन्हास का नाम आ रहा है, अली रजा का आ रहा है, इसके अलावा कुछ और क्या आपके नाम आ रहे हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया हो, जिनको आप देखना चाहेंगे, मे बी नॉट
immediately, but maybe in the next 2 to 3 years, you see KR potentially they can make a case for entry into the Pakistan team. हसन नवाज की फॉर्म थोड़ी सी बेटर हुई है। Yes, फेल हो that's what रहा I was था, exactly बहुत going to ज्यादा say. बड़ी बुरी तरह फेल हो रहा था। कुछ अच्छे कैमियोज खेले, थोड़ी अकल उसमें वापस आती हुई नजर आ रही है, थोड़ा स्टे करके खेलने की। बहुत ज्यादा, हालांकि एक्चुअली मेरे पास अभी एक लिस्ट ओपन थी, उसमें हसन नवाज इज एक्चुअली अ लिटिल बिट हायर अप इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 में होगा स्कोरर। नहीं, वो लास्ट सीजन मुझे बेचा था, और हसन नाफे नवाज से तो का आप नंबर कंपेयर 9 करके नाफे को तो हटा के उसको हाँ डाल ही सकते हो, राइट? दो लड़कों who I've been most pleased with, I think number one is Hassan Nawaz, like you said, because for me he has the talent. He has to be given sustained at number 4. ये भी नहीं कि just spinning him like Shrib Kaneke in the 17th, 18th over. He's not necessarily a finisher. He is a guy who can build from the middle order onwards. You know, so that's number one. Dusat, look, you cannot deny it. Usman Khan has. Number one, he has sacrificed his opening spot, which was his strength by far. Come lower down because he recognizes that's the need of the team. सेंचुरी बना दिया, लोअर डाउन कितना lower down. मुश्किल होता है सेंचुरी बनाना। And lower down, he has played well. Look, I'm the first one to say his technique is ugly. You know, he doesn't look good. समझ में नहीं आता कि कैसा वो कर रहा है, but World Cup में भी इंडिया के खिलाफ इंडिया वाले मैच में so you got to give credit where it's due. और बाकी विकेट कीपर चल नहीं रहे ना, बाकी विकेट कीपर्स आपके रिजवान तो दुनिया में कराओगे वापस। विकेट कीपर ऑलराउंडर होता है ना, तो ये उसको ठीक है, आप रिजवान ओपन करता है, जरूरी थोड़ी आप विकेट कीपर ऐसा लाओ जो ओपन ही करे। तो मेरे ख्याल से उस्मान खान इज फाइन, अगली है जो भी है, उसकी कीपिंग भी अच्छी है यार। स्पिनर वो ही प्लेज स्पिनर रियली गुड, वो अगली खेलता है, मैं छक्के डरता नहीं है, स्पिनर वो लंबे बार फेंकता है यार। अभी जो हैदराबाद को उसने जिताया है लास्ट गेम में, जो 240 बने, उसमें उस्मान खान का भी बड़ा रोल था। तो ही प्लेज विद अ बिग हार्ट। आई थिंक गूगल से बेहतर है, क्योंकि उस्मान खान इज अ गुड फ्लोटर, ही कैन प्ले इन एनी नंबर, और उसको बेचारे को ऐसे ही खिलाओ लो वैल्यू विकेट, मगर ही इज बेटर देन लो वैल्यू। हमारी पसंद नहीं आ रही वैसे, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं, उसका एक ही आर्गुमेंट है जो आप बता चुके हैं उसकी टीम में होने का। अदरवाइज मुझे लगता है कि इन माय गुड डेज आई प्रोबब्ली वाज अ बेटर नहीं आई एग्री नहीं इसमें नहीं, मैं बताता हूँ उसमें इसका जो आर्गुमेंट है ना उसके हक में, वो ये है कि आपके जितने भी अदर बाकी की कंपटीशन नहीं है, वो जिस जगह पे बैटिंग करते हैं उस जगह पे इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जरूरत नहीं है, उस वक्त स्पॉट अवेलेबल नहीं है ना। आपका गूगल नीचे बैटिंग कर ही नहीं सकता, ऊपर बैटिंग करता है, ऊपर जगह नहीं है टीम में। बाकी 7 बेग है या जितने भी और चले, और क्या है, हसीबुल्ला की बात करते हैं, हसीबुल्ला भी लोअर डाउन को अगर साइम जितना चांस मिले तो फिर मैं मानूं कि वो सही प्लेयर नहीं है। हसीब बेचारे को नहीं चले नहीं, वैसे उसकी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ही हैज काइंड ऑफ गॉन आउट ऑफ माय फेवर्स। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कभी, जब चलो बाद में बात कर लेंगे उस पर। लेकिन उस्मान खान की जगह इसलिए बनती है कि जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन अवेलेबल हैं वो उस्मान खान से शायद थोड़े टेक्निकली बेटर होंगे, वो हाई क्वालिटी बॉलिंग को शायद थोड़ा बेटर खेल लेंगे, शॉर्ट बॉल को बेटर खेलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं या खेलते हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जगह नहीं। और T20 में यार, T20 में टेक्निक डजंट मैटर दैट मच, राइट? इट्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अब तुम उसको देखो ना, करेगी, अभी आप देखेंगे ना आगे जब कंपेटिटिव गेम्स होंगी तो करेगी, तो मैं आपको याद करवाऊंगा। सही, मगर फरहान को देखो, अगली है मगर इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट। अब जो भी है, अब साइम, अब कंट्रास्ट करो, साइम 360 ब्यूटीफुल ड्राइव्स, ये वो रन नहीं हो रहे, और दूसरा कसाई है वो फरहान, और वो क्रेडिट टू हिम कि बल्ले पे बॉल आ जाती है उसके। नहीं, लेकिन I have to push back again a little bit. Farhan, the jury is still out. He has not played outside of the subcontinent or in the Middle East. Sure. We have not seen him play in England or Australia or New Zealand where the ball is seaming. I do think his technique is lacking, and he's going to be exposed there. But until that happens, you know, Tika Jobia, that Usman ka ye, look, I don't know where I get this from. This based on nothing. To me, it seems like he also is playing more for the team than himself. Exactly. He doesn't mind getting run out. You know, he doesn't mind sacrificing his wicket. Usko sirf aur sirf team ke, which is rare in this current crop. मुझे याद है उस्मान खान ने जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान तीनों T20 हारा था, उसने वहां 50 भी कर दी थी, अगली 50 ऑस्ट्रेलिया में भी वो हट के उल्टे सीधे घुमा रहा था, उसने 50 मार दी थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया। नहीं, वो बड़ा वो इंटिमिडेट नहीं होता आपने। तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, उस्मान खान को इज्जत देने की जरूरत नहीं है एज अ बैट्समैन। लो वैल्यू विकेट है वो, बस फर्क ये है, आप उसको 7वें भेज दो, 6वें भेज दो, वो आगे घुमा देगा, बस सही है।
ठीक है। टीम आपके साथ फास्ट बॉलिंग में थोड़ा डिसअपॉइंट किया, जिस तरह आपने कहा कि कोई हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। जो डेथ बॉलिंग में कोई हमें, वसीम जूनियर ने बहुत डिसअपॉइंट किया। सलमान मिर्जा जो था प्रॉस्पेक्ट, यार वो एक भी बात नहीं। बताओ, जूनियर पे ठीक है, T20 में डिसअपॉइंट हुआ है, किया है, मगर जो ODI में रूल चेंज हुआ है ना बॉल का, तो वो जो उसके वो ही माइट बी स्टिल गुड फॉर रिवर्स स्विंग, वो जो राइट, राइट। 30-35 हाँ, बाद नहीं नहीं, ODI। ओडीआई पे तो हम एक और एक हाँ एपिसोड सॉरी, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ T20 में मौका कम होता है यार। एक और फ्लॉप हुआ है यार, अब्बास आफरीदी क्या कर रहा है यार, स्पिनर बना हुआ है, भाग के आता है 4 बॉल वो लेग स्पिन डाल रहा है, दिमाग खराब हो हालांकि गया। बैटिंग उसकी अच्छी इंप्रेसिव है, लेकिन नहीं यार, हाँ बॉलिंग उसकी मगर मेन रोल तो अगेन बॉलिंग का है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग यार अब्बास चले, मेरा आफरीदी। ख्याल है इजाजत लें, थोड़ा एपिसोड भी हमारा लंबा हो गया। होपफुली हाँ आपको यू लाइक द एपिसोड। हम दोबारा इंशाल्लाह जब ये PSL खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे, एंड एट दैट टाइम वी विल अगेन टॉक अबाउट के बेस्ड ऑन द एंटायर एविडेंस कि अब हम क्या चेंजेस प्रपोज करना तो चाहेंगे T20। फेवरेट टीम्स तो कर लो, कौन फेवरेट टीम, नहीं यार, वो फेवरेट बाद में टीम कर या फेवरेट, द लेंगे टीम, नहीं यार। इट्स फेवरेट बिन जिनको आप लॉन्ग चाहते यार। हो, या फेवरेट के जो आप नहीं समझते हो कि वो नहीं, जो जीतेंगे। आप चाहते हो, कौन कौन किसको जीतना चाहिए? पता नहीं यार, 4 ही मेरा तो तो बस बची है। लाहौर ही था, एक खबर चला गया। आफ्टर द होल टूर्नामेंट पे कर लेते हैं। नहीं नहीं, जीतेगी कौन PSL भाई? Oh. पसंद नहीं है टीम कोई? अच्छा, जीतेगी कौन? हु इज द फेवरेट फॉर यू फॉर PSL? किसको सपोर्ट हु कर आई रहे हो? वांट या हु आई थिंक विल विन? हु यू वांट? I I would will go want Peshawar Hyderabad. Zalmi. I think Peshawar जल्मी, Zalmi deserves, but शोएब I think जल्मी। Islamabad United is going to win. जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का फाइनल होगा। हम वो, अच्छा वो जो भी हो, मगर हैदराबाद मेरी फेवरेट है। Hyderabad. I want Hyderabad. I It's want a new हैदराबाद टू। team. New team. पता नहीं थोड़ा यार, And Hyderabad स्टेटस and is a very volatile team. I आई नो। mean, highs are very and high, lows are very low. So I don't know. I Simon like will score a consistency. century, and then we're not going to know what to do. So yeah. नहीं, हैदराबाद अगर जीती तो वो फिर वही लाहौर वाला हिसाब हो जाएगा कि वो लास्ट जिस तरह आए थे और वो करते करते दिल हैव टू विन 3 games on a trot. So I don't see them realistically winning 3 games on a trot. हो भी सकता है, but let's see. मेरे हिसाब से तो वही है, पेशावर जल्मी आई थिंक आर द मोस्ट डिजर्विंग टीम, जितना कंसिस्टेंटली उन्होंने किया है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड सीम्स टू बी पीकिंग एट द राइट टाइम, ये एंड डिजर्विंग तो आपने रिजवान वाली बात कर दी है भाई, क्या मतलब कोई ऑल द डिजर्विंग? डिजर्विंग फ्रॉम द सेंस के भाई अगर कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं तो अगर एक वो उस तरह पॉइंट ऑफ मजाक व्यू कर से रहे तो हाँ हाँ। बट ये है कि इफ इस्लामाबाद यूनाइटेड विंस तो लाहौर कलंदर्स का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब हो जाएगा। करंटली दे आर द को लीडर्स इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज। इस्लामाबाद और लाहौर की 3-3 है, उनकी 4 हो जाएंगी। सो आई डोंट नो हाउ हैप्पी आई विल बी इफ दैट हैपेंस, बट अदरवाइज आई डू सी इस्लामाबाद यूनाइटेड। शोएब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में क्या? एंड पे कौन जीतेगा? जी जी। नहीं, अब मेरी फेवरेट टीम तो पेशावर जल्मी पहले दिन से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें Like from ओवरऑल जो season आप कह one. रहे हैं कि बॉलर्स की वजह से। सीजन 1, हाँ, बॉलिंग ही तो PSL में बॉलर्स ही कोई नहीं है। पहले सही वीक, सही। बल्कि जल्मी जो हार रही थी ना, उनकी बॉलिंग वीक थी। ये पहला हाँ सीजन है कि हाँ, दे केम विद अ बेटर बॉलिंग, तो बेटर इसलिए वो बॉलिंग। और खतरनाक लग रही है टीम। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका इवन लोअर डाउन, ये आपका जो चाचा है, सरप्राइजिंगली चाचा इज स्टिल, आई मीन मे बी ही हैज अ फ्यू इयर्स स्टिल लेफ्ट। उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, और अब्दुल समद इज डूइंग वेल। और ये जो नाहिद के जाने के बाद भी जो दूसरे लड़के हैं, अली रजा एंड अदर्स, दे हैव स्टेप्ड अप। लाहौर के खिलाफ थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल दे डूइंग वेल। चले जी, होपफुली दोबारा आपके साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट के इसकी इंप्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। Zindabad.